Hello students, in previous video we have seen the Rutherford and Bohr's model of an atom. Now we are going to see here distribution of electron in different orbits. So let's see here. The distribution of electron into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. For writing the number of the electron in different energy level or shell, some rules are followed. The first rule is the maximum number of electron present in a shell given by formula 2n raised to the power 2, where n is the orbit number or energy level like 1, 2, 3, etc. Therefore, the maximum number of electron in different shell are as follow. Here, first orbit or K shell, it means 2 into 1 raised to the power 2, it means equal to 2. Second orbit or L shell is equal to 2 multiplied by 2 raised to the power 2, it means 8 electron will be in L shell. And the third orbit means M shell, so 2 multiplied by 3 raised to the power 2, it means total 18 electrons will be in this orbit. And fourth orbit, it means N shell, there is 2 multiplied by 4 raised to the power 2, it means total 32 electrons will be in fourth orbit. So the second rule is the maximum number of electron that can be accommodated in the outermost orbit is 8. इट मीन्स हमारे पास जो एटम होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते. इलेक्ट्रॉन आर accommodated in a given shell unless the inner shell are filled. That is, the shells are filled in stepwise manner. Now we will see the valency. The electron present in the outermost shell of an electron are known as the valency electron. They govern the chemical properties of an atom. The atom of electrons having completely filled outermost shell which has 8 electrons said to be possess an octet show little chemical activities, that is, they are highly stable. Such elements are called inert element. It means their valency is 0. Of these inert elements, the helium atom has 2 electrons in its outermost shell, and all other elements have atoms with 8 electrons in the outermost shell. It means यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है वो 8 एलिमेंट से कंप्लीट होना चाहिए. इसका मतलब यहाँ पर कहा जाता है कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए. ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं वो इनर्ट एलिमेंट कहलाते हैं. इट मीन्स उनकी वैलेंसी 0 होती है. यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारे पास हीलियम एटम है जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही ऑर्बिट होता है इसमें, और इसके आउटर मोस्ट शेल वही होगा और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं. इट मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड और शेयर्ड बाय एन एटम टू बिकम स्टेबल और अचीव एन ऑक्टेट इन द outermost shell is known as valency of that elements. In other words, we can say it is the combining capacity of the atom of an element with the atom of other elements in order to complete its octet. इसका मतलब यह होता है कि हमारे पास जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में, वो एटम के आउटर मोस्ट शेल में या तो इलेक्ट्रॉन देने या लेने या तो इलेक्ट्रॉन को साझा
करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन उस एटम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। नाउ लेट्स सी द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सम ग्रुप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। फर्स्ट पॉइंट इज दैट hydrogen, lithium, sodium and potassium atoms contain one electron each in their outermost shell. Therefore, each one of them can lose one electron to become stable. Hence, their valency is 1. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एटम जो होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में, इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर या खोकर इलेक्ट्रॉन देकर वो अपनी स्टेबिलिटी वाली जो स्टेट होती है उसको वो प्राप्त करते हैं। सो इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन दे देने के कारण इनकी वैलेंसी 1 होती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास द वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, beryllium is 2 because all these have 2 valence electrons and they can lose their 2 electrons to make the octet of electrons in the outermost shell or to become stable। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोकर या किसी अन्य एटम को दे सकते हैं और देकर अपना आउटर मोस्ट अपना जो ऑक्टेट होता है उसको कंप्लीट करके अपने स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पर हमारे पास द वैलेंसी ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम इज़ 3 because each has 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कि हमारे पास एल्यूमिनियम और बोरॉन इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन दे करके स्टेबिलिटी वाली पोजीशन में आ जाते हैं। इसी तरह से द वैलेंसी ऑफ बोरॉन एंड सिलिकॉन इज़ 4 because each has 4 valence electron. In next point, nitrogen and phosphorus each has 5 valence electrons, so their valency is 3 because they can gain 3 electrons instead of losing 5 electrons to become stable. Hence their valency is determined by subtracting 5 electrons from the octet, that is 8 minus 5 is equals to 3. However, potassium can also share 5 electrons, hence it shows a valency of 5 along 3. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इनकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन साझा न करके 3 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके अपनी स्टेबल वाली पोजीशन में आ जाते हैं, स्टेबिलिटी वो प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन परंतु हमारे पास यहाँ पर जो फॉस्फोरस होता है वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन भी ले लेता है। इसी वजह से इसका जो वैलेंसी होती है वो कभी कभी 5 और कभी कभी 3 भी हो सकती है। अगले पॉइंट में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर ईच हैज़ 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर देयर वैलेंसी इज़ 2 बिकॉज दे कैन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स और शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और सल्फ़र में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी 2 बताई जाती है, क्योंकि ये अपने 6 इलेक्ट्रॉन न देकर 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार इनकी वैलेंसी 2 होती है।
Similarly, fluorine and chlorine each has 7 valence electron. Their valency is 1 because they can gain 1 electron or share 1 electron to complete their octet. ठीक इसी प्रकार फ्लोरीन और क्लोरीन इन दोनों में इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन को साझा कर सकते हैं या एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। इस प्रकार इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं।